So girls, our next topic is the application of maxima minima. So before starting with the topic, this is the summary of the chapter maxima minima we have done. So I am just reading it once. For increasing function dy by dx greater than 0 at that point, and for decreasing function dy by dx is negative at that point. To check maxima or minima, we have two methods. In the first method, we find x by substituting dy by dx is equal to 0, and at that point of the curve, if t square y by dx square is negative, then the function is having the maxima at that point, and if it is positive, then the function is having the minima at that point. For second method, dy by dx is equal to 0, then if dy by dx changes its position from positive to negative, then it is maxima. So positive to negative means आपने ऊपर देखा ये पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए और नेगेटिव होता है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए. तो फंक्शन अगर इंक्रीज होते होते डिक्रीज होने लगे इसका मतलब उसने पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है. एंड सिमिलरली इफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन द फंक्शन इज हैविंग अ मिनिमा एट दैट पॉइंट. And in first case, if d square y by dx square is equal to 0, or in second case, if dy by dx is not changing its sign from positive to negative or negative to positive, then we say that the function is having a point of inflection at that point. So let us start with our topic now. So our next topic is how to apply maxima and minima to the problems. See first example. Divide 15 into two parts so that product of two parts is maximum or minimum. So we have to divide 15 into two parts. So their product is either maximum or minimum. So let us see. So they are saying total we have 15. We have to divide it into two parts. So let us take the first part be x so that the other part becomes 15 minus x. So now our function is product of these two. So x into 15 minus x को हमने y बोल दिया because we have to find the two parts such that their product is either maximum or minimum. तो उनके product को हमने function define कर दिया. So y is equal to 15x minus x square. Now dy by dx will be 15 minus 2x. Equating dy by dx is equal to 0. We get 15 minus 2x is equal to 0 or x is equal to 15 by 2. So now d square y by dx square will be, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो देखो -2 आ रहा है. एंड ये जो है ये नेगेटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, ये कांस्टेंट फंक्शन है. एंड इट विल बी नेगेटिव. आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो. सो दैट मीन्स द फंक्शन दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज मैक्सिमम. ओके, सो प्रोडक्ट इज obviously the product cannot be always maximum, but I want to say is that the product is maximum at x is equal to 15 by 2. Hence this function has only maximum value, मतलब इसकी minimum value नहीं है. And the point is that x is equal to 15 by 2. तो हमने एक part को x लिया था और उसकी value 15 by 2 आ गई. So the other part will be 15 minus 15 by 2 which is again 15 by 2. So the required values are 15 by 2 and 15 by 2. क्योंकि उन्होंने बोला था आइदर द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो हमने बता दिया दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फॉर दीज वैल्यूज एंड इट हैज़ नो मिनिमम. अब देखो जो सेकंड एग्जांपल है वो बिल्कुल सेम है. दे आर सेइंग डिवाइड 100 into two parts सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स में बी मिनिमम. तो अब 100 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट्स. तो एक पार्ट x लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स. अब हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट, सो एक पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे पार्ट का स्क्वायर 100 माइनस एक्स की होल स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास मिनिमम होना चाहिए. तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया आवर प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइजेशन बिकम्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स इंटू होल स्क्वायर. तो अब हमने देखना है इसकी मिनिमम वैल्यू कब आती है. सो डिफ्रेंशिएट करेंगे वही विद रिस्पेक्ट टू एक्स. So dy by dx is equal to 2x into 2 into 100 minus x into -1 आना था जो कि इन्होंने मिस्टेक की है. सो इंटू -1 करके
सो अब आप देख सकते हो मैंने ठीक कर दिया उसको. dy by dx is equal to 2x plus 2 into 100 minus x into minus 1 is equal to 2x minus 2 into 100 minus x. Now for maxima or minima we have to put dy by dx is equal to 0. So 2x minus 2 into 100 minus x को जब आप 0 पुट करोगे ये बन गया 2x minus 200 plus 2x, that is 4x is equal to 200, that is x is equal to 50. Now we have to find second derivative. d square y by dx square is equal to 2 minus क्या किया इन्होंने, d square y by dx square is equal to हमारे पास आना था 2 into minus 2 into minus 1, that is 2 plus 2 is equal to 4, which is positive irrespective of the value of x. So that means again this function has only minima and no maximum. So which is positive. So function is minimum at x is equal to 50. So one part is 50 and the other part is 100 minus 50, that is again 50. Similarly third example भी ऐसा ही है. Find two positive numbers with sum 10 and sum of cubes should be minimum. So let the one number be x so that the other number becomes 10 minus x. Now sum of cubes of two numbers, that is s is equal to x cube into 100 minus x की whole cube. We have to find the value of x so that this sum is minimum. So this becomes is equal to x cube into a minus b whole cube का फॉर्मूला लगाया है मैंने, साइड में आपको फॉर्मूला लिख के भी बता दिया. a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. So वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया इन्होंने. So it becomes x cube plus 10 की cube is 1000 minus x cube minus 3 into 10 into x करेंगे तो 30x into 10 minus x. तो आप देख रहे हो x cube के साथ x cube हमारा कैंसिल हो गया and we are left with 1000 minus 300x plus 30x square. So अब हमने देखना है कि ये मिनिमम कब होगा. उसके लिए डेरिवेटिव फाइंड किया. ds by dx is equal to minus 300 plus 60x. So यहाँ पे equating it to 0. ये देखो ds by dx की वैल्यू आई थी minus 300 plus 60x. So ये minus 300 plus 60x equal to 0 किया जिससे x की वैल्यू आ गई 5. Now d square s by dx square will be, इसका तो डेरिवेटिव 0 है तो 60 हो जाएगा, which is always positive. So that means the function has minimum at x is equal to 5 and the other term also becomes 5. Now next is application of maxima and minima in economics. So problems relating to minimization of cost. So आपको cost function दिया हुआ है, find output where cost is minimum and the minimum cost. So x हमारी output है. तो द गिवन फंक्शन इज दिस. हमने देखना है कि ये मिनिमम कब होगा. तो देखो बिल्कुल सेम कुछ भी नहीं है इसमें, तो फंक्शन भी बना के दे दिया. सो डी सी बाई डी एक्स फाइंड करोगे आप, उसको ज़ीरो करोगे. सो 4x माइनस 300 इक्वल टू 0. उससे x की वैल्यू आ गई. सेकेंड डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर. ये देखो वो 4 आ गया विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. सो द फंक्शन इज हैविंग मिनिमम एट x इज इक्वल टू 75 एंड द मिनिमम कॉस्ट विल बी गिवन बाय substituting x is equal to 75 in C, and this is the answer. So very easy question. So next, if you look at next example number 5, the cost C per kilometer is given by C is equal to 120 by x plus 600x, where x is the cross section in square centimeters. Find the cross section, मतलब find x for which cost is least, जिसके लिए कॉस्ट मिनिमम है, एंड ऑल्सो फाइंड द लीस्ट कॉस्ट पर किलोमीटर. सो वही सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. सी की वैल्यू आपको दी हुई थी, डी सी बाई डी एक्स फाइंड करना हमें आता है. सो डी सी बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, साथ ही डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया. नाउ ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें. डी सी बाई डी एक्स इज 120 इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 600. जब डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 240 बाई एक्स क्यूब. डी नहीं आना था. नाउ डी सी बाई डी एक्स को जब इक्वल टू 0 किया तो माइनस 120 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 600 इक्वल टू 0 और माइनस 120 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 600. सो ये सॉल्व करके देख लेना आप.
सो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि -120/x² इज इक्वल टू -600 होगा. सो x² बन जाएगा 120/600, दैट इज 1/5, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू +-1/√5. Now they are saying negative value is rejected because cross section cannot be negative. Cross section का मतलब समझते हो ना आप? Cross section means area. जैसे कि अगर आप एक क्यूब लेते हो तो क्यूब में जैसे रूम है, रूम भी तो एक क्यूब है ना, तो उस रूम की हर एक वॉल जो है वो एक क्रॉस सेक्शन है ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ और ब्रेथ एंड हाइट एंड सो ऑन. सो क्रॉस सेक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट किया. नाउ एट x इज इक्वल टू 1/√5 d²/c/dx² जो हमने ऊपर ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था 240/x³, उसमें x की वैल्यू +1/√5 पुट कर दी है, जो कि 1200/√5 आ रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू. देयरफॉर x इज इक्वल टू +1/√5 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड द लीस्ट वैल्यू पर किलोमीटर विल बी गिवन बाय ये जो हमें c फंक्शन दिया हुआ था 120/x + 600 × x, उसमें हमने x की वैल्यू 1/√5 पुट करके आंसर फाइंड कर लिया. So similarly they have given some problems relating to maximization of revenue. देखो इकोनॉमिक्स में क्योंकि इसका यूज़ बताया, तो इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्रीज़ में हमारा पर्पस यही होता है ना कि हमारी जो कॉस्ट हो वो हमेशा मिनिमम रहे और रेवेन्यू जो हो वो मैक्सिमम हो. सो 6 एग्जाम्पल में फ्रॉम फॉलोइंग प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेशनशिप फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम. द फंक्शन इज गिवन बाय दिस. सो P इज इक्वल टू 100 - 4x, ये आपको प्राइस दिया हुआ है. ओके, the given price and quantity relationship is P is equal to 100 - 4x. So total revenue will be P into x. I hope this is clear to you. देखो प्राइस P जो आपको फंक्शन दिया हुआ है 100 - 4x, वो एक क्वांटिटी का फंक्शन है, का प्राइस है. तो टोटल रेवेन्यू आपको क्या होगा कि टोटल आपने जितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस की हैं मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ 1. सो दैट इज वाई टोटल रेवेन्यू TR से डिनोट किया है विल बी इक्वल टू PX इज इक्वल टू 100 - 4x इंटू x विच इज इक्वल टू 100x - 4x². अब आपने देखना टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होना चाहिए. सो टोटल रेवेन्यू को TR से डिनोट किया, आप इसको Y से भी डिनोट कर सकते थे अपनी कन्वीनियंस के लिए. TR इज ऑल्सो करेक्ट. सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ रहा है 100 - 8x फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 12.5. नाउ सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है -8. सो यहाँ पे अगेन मिस्टेक है, x नहीं लिखना चाहिए था इनको. सो -8 जो है वो कांस्टेंट है. सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ, ये देखो ये मिस्टेक की है इन्होंने, यहाँ पे -8 आना था. So second derivative is -8 which is negative. So the function this TR is maxima. It is negative. So total revenue function is maximum when Q is equal to 12.5. Q nahi X. When X is equal to 12.5 and maximum revenue is given by X की वैल्यू हम पुट करेंगे, इन्होंने P में पुट किया है, गलत है ना. टोटल रेवेन्यू हमारा है दिस. सो ये रेवेन्यू नहीं है ना, ये तो प्राइस है. सो इट इज टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 12.5 एंड मैक्सिमम रेवेन्यू इज गिवन बाय टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू ये P की वैल्यू थी इंटू x आना था. सो दिस इंटू x. सो 50 इंटू 12.5 करेंगे हम, तो उससे हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. सो टोटल रेवेन्यू इज गिवन बाय 625. नाउ सेवंथ एग्जाम्पल इज द टोटल रेवेन्यू फॉर अ कमोडिटी Q इज R इज इक्वल टू दिस. तो इसमें आपको डायरेक्टली रेवेन्यू ही दिया हुआ है. शो दैट एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज रेवेन्यू फंक्शन AR इज इक्वल टू
MR. So total revenue function R is this. MR is equal to DR by DQ and AR is equal to R by Q. So I am not aware of these results. ये formulas may be आपने economics में पढ़े हो. So I have not studied economics, so मुझे ये formulas नहीं पता. So I am assuming that these formulas have come from there only. So MR is equal to DR by DQ की हेल्प से इन्हें MR मिल गया एंड AR का फॉर्मूला R by Q बोल रहे हैं ये एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ओवर आउटपुट. सो वो ये मिल गया. सो अब हमने देखना है कि एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, इसका मतलब मुझे ये चेक करना है कि एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम कब है. सो D by DQ ऑफ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 1/2 माइनस 2/3 Q. सो इसको करेंगे 0. इसको 0 करने से Q की वैल्यू आ गई 3/4. नाउ सेकंड डेरिवेटिव इज कमिंग टू बी minus 2/3 which is always negative. That means average revenue is maximum at Q is equal to 3/4. So now Q की वैल्यू 3/4 यूज करके इन्होंने मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू फाइंड कर लिया एंड दे आर कमिंग टू बी इक्वल. सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8. एग्जाम्पल 8 में दे आर सेइंग द डिमांड फंक्शन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इज P. तो अब आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है एंड कॉस्ट फंक्शन इज C, where Q is the output and P is the price. Find output level where profit is maximum and hence the maximum profit. So you have to find the output level. So let us see example 8 again. So I was saying the demand function of a certain product is P and cost function is C. So क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट फाइंड करना है, देखो इन्होंने नीचे ये भी बोल दिया, दोबारा एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को ही सिर्फ. द डिमांड फंक्शन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इज P एंड कॉस्ट फंक्शन इज C, वेयर Q इज आउटपुट एंड P इज प्राइस. तो जो कैपिटल P इज इक्वल टू 98 माइनस 3Q/4 दिया आपको, वो प्राइस दिया हुआ है. सो देखो प्रॉफिट निकालना है आपने. वी हैव टू फाइंड द आउटपुट लेवल वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम. सो प्रॉफिट इज गिवन बाय रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ऑब्वियसली रेवेन्यू मतलब जितनी इनकम हुई और माइनस उसमें से जो हमारा कॉस्ट हुआ. सो नाउ रेवेन्यू इज गिवन बाय प्राइस इनटू Q. सो पहले इन्होंने रेवेन्यू फाइंड किया P इंटू Q करके, सो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दिया. रेवेन्यू जो हमने P इंटू Q किया था माइनस कॉस्ट जो हमें C दी हुई थी 3Q² प्लस 2Q. सो नाउ प्रॉफिट फंक्शन को वो PR से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल P ऑलरेडी प्राइस के लिए यूज हो चुका है. सो ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट की हैं. 98Q माइनस 3Q² ओवर 4 माइनस 3Q² माइनस 2Q. देन LCM लेके सॉल्व किया एंड वी आर गेटिंग 90Q माइनस 15Q²/4. सो हमें आउटपुट लेवल फाइंड करना है जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम है. दैट मीन्स Q की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम. सो मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए जो हमारा ये PR आया है 90Q माइनस 15Q²/4, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू Q. तो आंसर इज कमिंग टू बी 1/4 90 माइनस 30Q. इसको 0 पुट करने से Q की वैल्यू आ गई है 3. नाउ सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो आई एम गेटिंग माइनस 30/4 विच इज ऑलवेज नेगेटिव. सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन Q इज इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज गिवन बाय सब्सटीट्यूटिंग Q इज इक्वल टू 3 इन जो हमने PR फंक्शन डिफाइन किया था. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको ये दिख रहे हैं जो आपने करने हैं. And these are the rest of the questions of the exercise. So ये 10 questions you have to practice.